Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are doing good. So, we are done with one chapter and one poem. Okay, now we are going to start a new chapter, that is Unit 9, The Fantastic Shoemaker, Wahidullah. So, open your page number 85. Okay, sorry. What are the things that you should keep in your mind before buying shoes? What kind of shoes do you like? Where do you buy your shoes from? Okay, there are just three points pre-reading, that is warm up for the chapter. The first one is वो कौन सी बातें हैं जो जूते खरीदने से पहले आपको जहन में रखनी चाहिए, ठीक है? क्या चीज़ें, like let's suppose you want the color, size, quality, whatever. What kind of shoes do you like? आपको किस किस्म के जूते पसंद हैं? Flat, heel, shoes, open, closed, what kind of? आप जूते कहाँ से खरीदते हैं? From where you buy your shoes? From local markets, from brands, from international brands, national brands, all of these questions. Let's begin the chapter. I first met him in my youthful days in the holy month of Ramadan when my father took me to his shop for ordering a pair of new shoes for the coming Eid. मेरी उससे पहली मुलाकात अपनी जवानी के दिनों में रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इस वक्त हुई जब मेरे वालिद आने वाली ईद के लिए चप्पल बनवाने के लिए मुझे उसकी दुकान पर लेकर गए थे. His shop was in a small but busy street of किस्सा ख्वानी बाज़ार. ठीक है, उनकी दुकान किस्सा ख्वानी बाज़ार की एक छोटी सी मगर मारूफ गली में वाक़या थी. A monstrous size black Peshawari chappal overhung on the faint color wooden door of his shop. उसकी दुकान के पीले रंग वाली लकड़ी के दरवाजे पर सियाह रंग की एक देव पेकर यानी एक बहुत बड़े साइज की पेशावर चप्पल लटक रही थी. ठीक है. The inside of the shop was as quiet and serene as that of a scared holy place. There were some old wooden stools and in the window some pair of shoes were visible. ठीक है. उसकी दुकान के अंदर से किसी मुक़द्दस मकाम की तरह खामोशी और पुरसुकून थी. वहाँ लकड़ी की चंद पुरानी तपियाँ रखी हुई थी, ठीक है, स्टूल्स, और खिड़की में चप्पलों के चंद जोड़े दिखाई दे रहे थे. ठीक है. A big smooth square shaped stones, a heavy wooden mallet and all, and their leased and well can be observed in the right side of the shop. The rest of the shop was as barren as a desert because he made only those pair of shoes that were ordered. At the far end of wall of shop was hanging a small signboard showing Zareen गुल एंड ब्रदर्स. ठीक है. उसकी दुकान में दाईं तरफ एक हमवार सतह वाला मुरब्बा शक्ल का पत्थर, लकड़ी का एक भारी भरकम हथौड़ा और एक सवा और एक 3 पाँव वाला संदान देखे जा सकते थे. दुकान का बाकी हिस्सा किसी सहरा की तरह खाली था क्योंकि वो सिर्फ वही चप्पल बनाता था जिनकी फरमाइश की जाती थी. दुकान की दीवार के आखिरी किनारे पर जरीन गुल एंड ब्रदर्स के नाम की तख्ती लटकी हुई थी. ठीक है, जहाँ पर मतलब उनकी शॉप का ये these are the person. The shoe that Zareen Gul made never failed to fit in the feet and they lasted extraordinarily longer than usual. To make shoes, such shoes as he made seemed to me then the seems to me now, mysterious and wonderful. I still remember my hesitant remarks while stretching out to him my youthful foot. Isn't it awful hard to make shoe in such tough conditions? The splendid wrinkles wriggled on his smiling face and he answered, "It is an art." So, जो चप्पल ज़रीन गुल बनाता था ना, वो पैरों के नाप से कभी छोटे बड़े नहीं होते थे, हमेशा परफेक्ट होते थे और आम जूतों के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए चलते थे. वो ऐसे चप्पल बनाता था जैसे पहले भी मुझे मतलब अजीब व गरीब और हैरत अंगेज़ मालूम होते थे और अब भी वही उसी तरह होते हैं कि भाई कोई फ़र्क ही नहीं मालूम होता. मुझे अभी भी मुझे अपना वो हिचकिचाहट बड़ा जुमला याद है जो मैंने नौजवानी के दौर पाँव इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था. ठीक है.
ये वाला। इस किस्म के सख्त हालत में चप्पल बनाना क्या इंतहाई मुश्किल काम नहीं? इसके मुस्कुराते चेहरे पर बल खाती झुर्रियाँ एक जगह इकट्ठी हो गई। उसने जवाब दिया, ये एक फ़न है, इट इज़ एन आर्ट। सी, ये एक फ़न है, ये इनकी महारत थी। Zareen Gul's remarks about making and this trouble to different people was so authoritative and final that nobody, ठीक है, that nobody dared reject them. My father thought chieftain of the area would accept his views about a particular pair of shoes with brisk nod. ठीक है, so चप्पल साजी और मुख्तलिफ लोगों के लिए इनकी मौज़नियत के बारे में ज़रीन गुल के मुशाहिदात इस कदर मस्तान और हतमी हुआ करते थे कि कोई भी इसे रद्द करने की जुर्रत ना कर सकता था। मेरे वालिद जो कि इलाके के सरदार थे, ठीक है, किसी किस्म के चप्पल, ठीक है, जो उनके फादर थे जो कि इलाके के सरदार थे, किसी किस्म ख़ास चप्पल के बारे में इसके ख्यालात को फ़ौरन हाँ में सर हिलाकर कबूल कर लेते थे। ठीक है, इसके पास बार बार जाना मुमकिन नहीं होता था क्योंकि इसके जूतों में कुछ ऐसा था जो आर्जीपन से हट कर था। सी, it was not possible to go to him often because there was something in his shoes that was beyond the temporary. It would not be wrong to say that durability was stitched into them. I cannot forget that the day on which I had to say to him, Zareen Gul Kaka, my last pair of shoe makes a creaking sound, you know. He looked at me with strange looks as if expecting me to withdraw the statement and then said, I shouldn't have creaked. I did, I am afraid, I said with querying tone. At that he lowered his eyes if it hunting for the memory of those pair of shoes. I really felt sorry that I mentioned this petty thing, which looked to him so serious and grave. Send them back, he said. I look at them. Some shoes are bad from birth. If I can do nothing with them, I will give back the amount you paid for them. ठीक है? So the explanation of this paragraph is like कि उनके पास बार बार जाना मुमकिन नहीं होता था क्योंकि उनकी शूज़ में कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। ठीक है, वो हमेशा पायदार, बहुत अच्छी सिलाई करते थे। ठीक है, मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मेरे जो पिछले चप्पल जो उसने लिए थे उसमें से किसी किस्म की आवाज़ें आ रही थी। ठीक है, मैंने जब उनसे ये कहा तो उन्होंने अजीब नज़रों से कुछ मुझे देखा। ठीक है, वो ऐसे चाहते थे कि जो स्टेटमेंट मैंने बोली मैं वापस ले लूँ। मैं कहूँ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने उनको बताया। वो कह रहे थे कि मुझे ख़दशा है कि ऐसा हुआ, मुझे थोड़ा था कि इस चप्पल में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर मैंने उनसे बहुत डर के बोला, उन्होंने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। ठीक है, क्योंकि वो याद कर रहे थे कि वाकई उस शूज़ में कोई ऐसा इशू था या नहीं। ठीक है, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने इतनी छोटी सी मामूली सी बात का जिक्र कि एक प्रॉब्लम का इशू का बताया जो कि इतना माइनर सी प्रॉब्लम थी और वो हर्ट हो गए शायद ये सुन के। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि मैं उसका साइज़ लूँगा। कुछ जो शूज़ होते हैं वो स्टार्ट से ख़राब होते हैं, ठीक है, बाय बर्थ। ठीक है, यानी शुरू से ही ख़राब होते हैं। अगर मैं पहले तो कोशिश करूँगा कि उनको ठीक कर दूँ और अगर नहीं कर पाया तो मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूँगा। ठीक है। Then I went abroad to pursue my higher studies and career and could not have the opportunity to meet Zareen Gul, the fantastic shoemaker, for several years. After several years, I returned to Peshawar, and the first shop I went to was my old friend Zareen Gul's. I had left a man of 50. I came back to one of 65 wands and taunts like an overshoot pair of shoes. He shook his bony hand with me, but the grip of his hand was as tight as it was many years ago. At first he did not know me, but when I got myself introduced, his broad eyes sparkled with smile. Do you want any shoes? He asked. I can make them quickly because I have plenty of free time. Then he looked at my branded shoes and said, those are not my shoes. His tone was one of anger, of the sorrow, not even of the contempt, but there was in it something
quite that froze my blood. He puts his hand down and pressed a finger on the place where my left shoes was not quite comfortable. It hurts you there? अच्छा, अब क्या होता है कि उसके बाद कहता है कि जो स्टोरी लिख रहा है वो कहता है कि मैं अपनी आला तालीम के बाद बाहर के लिए मुस्तकबिल बनाने के लिए फ़ॉरेन कंट्री मुल्क से बाहर चला गया था। फिर मैं काफ़ी टाइम बाद आया तो सीधा मैं इनकी शॉप पे गया, ज़रीन गुल की शॉप पे गया, ठीक है। तो क्या हुआ था कि मैं उसके पास गया, मैं एक 50 साल शख्स को छोड़ के गया था। अब जब मैं आया तो वो 65 साल का शख्स हो गया, ठीक है। ये उसकी 15 ईयर्स बाद आई गेस ये आए हैं, ठीक है। उन्होंने, मैं उनको देखा तो वो काफ़ी ओल्ड हो गए थे, ठीक है। वैसे हालत उनकी नहीं थी, बहुत वो एजड हो गए थे, एजड हो गए थे। तो कहते हैं जब मैं उनकी शॉप पे गया तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, ठीक है। ही डिडंट नो मी, ठीक है। उसने हाथ आगे बढ़ाया, ठीक है। जब पहचाना, हाथ आगे बढ़ाया, मैंने कहा कि मैं कौन हूँ, तो बहुत अच्छे से उसने मुझे वार्मली उसने मुझसे हाथ मिलाया, ठीक है। उसको अच्छा लगा। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको कोई शूज़ चाहिए। मैंने कहा नहीं, शूज़ तो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा। फिर जब उन्होंने मेरे पाँव की तरफ देखा तो उनको कहा कि तुमने तो कोई ब्रांडेड शूज़ पहनी है, तो मेरी दुकान के नहीं है। शायद उनको ये बात बुरी लगी, ठीक है। उनको ये बात बुरी लगी। वो कहते हैं मुझे भी उस वक्त बहुत ऑकवर्ड फील हुआ कि उनको शायद मेरा यहाँ पर आना या मेरा कोई और शूज़ पहनना उनको बुरा लग गया था। फिर क्या किया कि उन्होंने मेरा पाँव दबाया, ठीक है, और कहा कि यहाँ पर तुम्हें आरामदेह महसूस नहीं हो रहा, ठीक है, ये चप्पल तुम्हें दुखा रहे हैं। Do the big shoemaking companies have no self-respect? And then he spoke bitterly against the big multinational that have extended their tentacles to the shoemaking trade. He told me how these companies had hired the craftsmen of shoemaking trade. These big firms use their hands, not their brains or experiences. I asked Zaringul Kaka why he used their hands, why he didn't join these big firms if his trade was not doing well, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं इनको बनाने का कोई सेंस ही नहीं है। ये सिर्फ बनाते हैं, ये सोचते नहीं है कि कैसे बनाना चाहिए, किस तरह से बनाना चाहिए, ठीक है। उनको कंफर्ट लेवल का पता ही नहीं है। वो यही से हमारे शूज़ मेकर, चप्पल बनाने वालों को ले जाते हैं और अपने फॉर्म्स में लगा देते हैं। तो कहते हैं कि मैंने भी ज़रीन गुल काका से कहा कि आप क्यों नहीं उनके साथ काम करते जब आपका काम अच्छा नहीं है। His reply was crispy and blunt. I am an artist, not machine, who will blindly follow their irrational and stupid dictations. उन्होंने कहा कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, फ़नकार हूँ, मैं कोई मशीन नहीं हूँ कि मैं उनकी बातों को फॉलो करूँगा और बहुत सारे चप्पल एक टाइम में बताऊँगा। They get it all, he continued. उसको सब कुछ मिल गया by advertisement, not by work, ठीक है। वो अपनी एडवर्टाइजमेंट, अपनी मशहूरी से इस चीज़ें ले लेते, अपने काम से नहीं। They look it away from us and presently we have no work. Looking his crumpled leathered face, I saw things I had not noticed before, bitter things and bitter struggle. His face and voice made so deep an impression on me that during the next few minutes I ordered many pairs. I wanted to make him advantage payment, but he refused, so he badly needed money, saying pay it when the shoe are ready to deliver. कहते हैं इतनी देर में जब मैंने उनको देखा मुझे बहुत अफसोस हुआ उनकी वो मुरझाए हुए चेहरे से। तो कहते हैं इतनी देर में मैंने बहुत सारे शूज़ उनसे ऑर्डर करवाए। मैं कुछ एडवांस में उनको पैसे भी देना चाहता था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब जूते बन जाए फिर आप मुझे पैसे दें। After a week later, I came to where his shop has been. I was surprised to see that the monstrous-sized black Peshawari chappal was no more hanging on the wooden door of his shop. A big-size signboard displaying the name of famous shoe brand was hanging on his shop. I went in and said, Zareen Gul Kaka. No, sir. A smartly dressed young man replied, no, but we can attend to anything with pleasure. We have taken the shop over. Yes, I said, but where is Zareen Gul Kaka? Oh, he answered, dead? But I have to receive the shoe that I ordered last week. अच्छा, कहते हैं अब मैं कुछ दिनों बाद किया, मैं देखता हूँ कि दुकान
की हालत वो पुराने हालत की तरह नहीं थी, वो बड़े चप्पल वहाँ पर हैंग नहीं थे, वहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा था किसी ब्रांड का। मैंने उनसे पूछा कि ज़रीन गुल काका कहते थे, वो कहते हैं वो तो अब नहीं है, आप बताएं हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, आंसर दिया कि वो तो मर गए, डेड, लेकिन मैंने तो कुछ दिनों पहले उनको कुछ चप्पल के ऑर्डर दिए थे। ठीक है। he said, poor old man staved himself slow starvations. The doctor called it. He never gave himself time to eat, never had a penny in his house. All went ठीक है, in rent and leathers. As I was coming back with heavy heart, the word of Zareen Gul, ठीक है, a fantastic shoemaker, was tinkling in my mind. Do the big shoemaking companies have no self-respect? ठीक, एक स्ट्रगलफुल आदमी किस तरह से चला गया कि कहते हैं मुझे अफसोस हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि वो फौत हो गए। वो बेचारा बूढ़ा आदमी फाकों से मर गया, धीरे धीरे फाका बहुत बड़ा। डॉक्टर कुछ ऐसा ही कहते थे, इसको कभी सुकून से खाना नहीं नसीब हुआ, उसके घर में पूटी कौड़ी नहीं थी, सब कुछ कढ़ाई और चमड़े की जो आमद थी उसमें खर्च हो गया था। ठीक है। जब दिल बोझल होके वापस आ रहा था तो मुझे इस ज़रीन गुल की वो बात याद आ गई कि क्या जूते बनाने वाले बड़ी कंपनियों को कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं, उन्हीं की वजह से उनका ये शॉप सब कुछ बंद हो गया, वरना वो तो एक आर्टिस्ट थे। ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, होप सो यू अंडरस्टैंड। ठीक है, रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ठीक है। Hope so that you have buy your notes from your school. If you didn't, go and grab your notes as soon as possible and do write your written work in your copies. Have a good day.